So let's start. मैटलैब में भी सर 4th हो गई स्टार्ट. Let us start today's class. So yesterday I started KKT conditions, KKT necessary conditions, and I discussed one problem: how to solve KKT condition and when the condition will become sufficient condition. So for that we have to see what is your objective function and what is your constraint. है ना? So this method is for optimization problem with inequality constraints. So next, so yesterday I took only one constraint. Now in general I can take KT conditions for KKT conditions for general non-linear programming problem, GNLPP, general non-linear programming problem, with suppose you have m constraints. Generally I am considering your constraints are less than number of unknowns. M constraints. You have m constraints now. So let us take one. Conditions will be same only because you have m constants, so some lambdas will be coming here, है ना? Some more lambdas will be coming. Means Lagrange multiplier will be coming. So suppose I have some general I am taking of maximization type. Suppose you have max of fx and subject to the constant hix less than equal to 0, where your hix is what is Abhilash? hix क्या होता है हमारा? gx plus c, gix plus प्लस माइनस minus c सर. माइनस सी है ना, Minus कॉन्स्टेंट को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो माइनस सी आई लिख दे रहा हूँ मैं. इफ यू हैव आई सपोज m constants now, so you will be having some m constants also, where I is running. I am taking m constants, so you can take I is 1 to m, and of course x is coming from n variables है ना. तो ये x will be what? X means x1, x2, xn. These will be unknowns, and unknowns are there. So the KKT conditions, necessary conditions, is called necessary condition. So same जैसे just like yesterday I did. First is your Lagrange multiplier condition. That means fj, j means because you have to differentiate it up to j times. J is from 1 to n, and you have n variables. So fj minus, now because you have m constants, so you have to take how many lambdas? m lambdas. M m lambdas, है ना? lambdas. Lambdas means your Lagrange, they are called Lagrange multiplier. So you have to take m Lagrange multiplier. So I can use the summation sign with minus sign because you have to take minus lambda 1 h1, lambda 2 h2, and so on. So I can write summation I is equal to 1 to m lambda I and hj I is equal to 0, है ना? अभी h i का मतलब तो वही है, I means h1 h2 जो constants है, j means your differentiation है ना, with respect to x1 x2 and so on. So it will be your first, where you can write here j is running from 1 to n and I is running from 1 to m. It will be your first condition. Second KKT condition was, now it will become lambda I hi is equal to 0, है ना? Yesterday I took only one constant, so it was lambda h is equal to 0. Now if you have m constants, so these will be m conditions. Lambda 1 h1 is equal to 0, lambda 2 h2 is equal to 0, and so on. Lambda m hm is equal to 0. So it has m equations. These are m equations. Keep in mind.
Next condition will be same, HI less than equal to 0, क्योंकि maximization problem है. This is a constant condition actually. And then non-negative condition that lambda I should be greater than equal to 0. Here HI means what? HI means del of HI upon HIJ means del of HI over del XJ. इसे हम differentiate करेंगे. So these will be the same 4 conditions. These are the necessary condition, and you know it will become sufficient when these are the necessary. These conditions become sufficient. क्या बताया था अभी आजकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए? Concave. हाँ, Con मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए fx should be concave, hi should be convex. So these conditions Convex. become sufficient if fx is concave and all hi, जितने भी hi's हैं constants हैं, all hi x are convex. So this condition will become sufficient. And similarly, you can write for minimization problem. All the thing will be same. Similarly, for minimization problem, now here hix I will take greater than or equal to 0. Then conditions will be what? Fj minus summation I is equal to 1 to m lambda I hij is equal to 0. Same I is running 1 to m and j is running 1 to n constants. Second condition will be same, lambda I hi is equal to 0. Third condition will become your constant condition, hix should be greater than or equal to 0, and lambda I is a non-negative condition. So only this condition will change the third condition. Rest condition will be the same. So these will be necessary KKT necessary conditions. KKT necessary conditions. And they will become sufficient when fx is convex. fx concave, yes. fx convex, hi concave. So conditions will be sufficient if fx is convex and these hi, all hi's x are concave. ये केकेटी कंडीशंस का प्रूफ है आपका गिवन है बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में. अपर्णा मेहरा वाली बुक में भी प्रूफ दिया हुआ है हाउ द कंडीशंस आर कमिंग. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रूफ यू कैन सी द प्रूफ कि हाउ दे आर कंडीशंस आर कमिंग, ऑल दीस कंडीशंस. आई हैव ओमिटेड द प्रूफ. So let us take one problem where your number of constants are more than one, higher, and number of variables also more than 2. Suppose I am taking one condition, one problem, and then I will solve it. Use KKT conditions. KKT या KT भी लिख सकते हैं. मैंने बताया आपको, कभी आप सोचे KT अलग है, एक ही बात है. Conditions to solve the non-linear programming problem. ये प्रॉब्लम आपकी पेज 37 पेज पे बुक में दे रखी है. ठीक है, वही प्रॉब्लम मैंने ले ली है. मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6x2. So I have taken 3 unknowns now.
subject to the constants, and two constants are given, x1 plus x2 less than equal to 2, 2x1 plus 3x2 less than equal to 12, and of course the feasibility conditions are there, they should be positive. Okay, so here it is a problem where you have two constants but three unknowns. So n is 3, m is 2. So I want to use KKT conditions. Use KKT conditions. So first thing, you know, you have to find, firstly let us write this fx h1x. So you know fx is this, fx इस फंक्शन को fx सपोज कर लेते हैं. And these are, suppose I am taking h1x. So what is h1x? x1 plus x2 minus 2 है ना, -2 equals to 0. is equal to 0 लिख दे, इतना लिख दे. h2x will be what? 2x1 plus 3x2 minus 12 is equal. Okay. So now I want to find the conditions. So you know the KKT conditions. अच्छा, यहाँ पर अगर हम पहले यहाँ फंक्शन की बात करें कि व्हाट अबाउट द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शंस, है ना, तो उसके लिए बिकॉज यू हैव थ्री unknowns. So for three unknowns, what I like, if you have two unknowns, so I used yesterday your second derivative test. So उससे हमें दिख गया था second derivative test में if you have your what f11 क्या आया था उसमें, f11 was greater than 0, है ना, less than 0. तो आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा. तो हमें आइडिया लग गया था कि वहां पर कॉनकेव होगा फंक्शन. अब यहाँ पर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट कब होंगी, इफ योर fx दिस शुड बी कॉनकेव एंड दे शुड बी कॉन्वेक्स. तो hx तो हमें दिख रहा है दीज फंक्शंस आर कॉन्वेक्स फंक्शन, है ना. ये और चेक करना Yes, होगा sir. कि व्हाट अबाउट, ये तो कॉन्वेक्स फंक्शन है, लेस देन, जब लेस देन होता है दे रिप्रेजेंट्स कॉन्वेक्स फंक्शंस. इट विल गिव यू अ लाइन. So lines are always convex. h1x क्या है, it representing a line. तो लाइन हमेशा कॉन्वेक्स होगी, हमेशा सेटिस्फाई करेगी कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी. कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, f of lambda x plus 1 minus lambda y less than equal to lambda fx plus 1 minus lambda fy, है ना. तो जो वहां मैंने आपको बताया था कि लाइंस जो होती हैं, अ लीनियर फंक्शन इज कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, दोनों होते हैं. तो ये h1x h2x क्या होगा, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है ये, Yes, sir. है ना. कॉन्वेक्स फंक्शंस क्या होते हैं कि या तो उनका ग्राफ इस टाइप का है कि जब भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो द कर्व शुड बी बिलो द लाइन सेगमेंट, या आपकी लाइंस, जो लाइंस होती हैं, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, लाइन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों होते हैं उसमें. तो fx की अगर हम बात करें, आई वांट टू चेक fx, तो fx के लिए आई विल अप्लाई द मेथड, अगर आपको याद हो जो हमने बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स बताया था, कि बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स में, है ना, मैं लिख दे रहा हूं यार, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बिकॉज थ्री वेरिएबल्स हैं, इज कॉनकेव if the principal minor of bordered Hessian matrix are alternate in sign, starting with
-1 टू द पावर m साइन से, तो -1 टू द पावर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने थे? 2 थे सर। नंबर ऑफ कांस्टेंट नहीं, नंबर ऑफ अननोन होते थे, स्टार्टिंग विद द नेगेटिव साइन। तो हियर यू हैव starting with negative sign, starting with negative sign, minus मतलब negative sign, starting with negative sign, and if the principal minors are positive, then the objective function is convex. Then the objective function is convex. एक्चुअली मैंने 2 केस लिखे थे जब हमने बॉर्डर हैसेन मैट्रिक्स डिस्कस करी थी। तो 2 केस थे कि द पॉइंट विल बी अ मैक्सिमम इफ द प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव, है ना, and if they will be minimum if the sign are coming in the alternate। ये 2 केस हमने यहाँ पे कंडीशंस लिखी थी जब आपकी मैंने बॉर्डर मैट्रिक्स बताई थी, उसको एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो उसमें यही हो कि अगर आपके पास मैक्सिमम का पॉइंट है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, वहाँ कॉनकेव हो जाएगा। अगर मिनिमम का साइन है फंक्शन का तो वो इस तरीके से आएगा, वहाँ कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो हम ये कंडीशन हम चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो हाउ इट यू चेक वेदर इट्स अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस बॉर्डर हैसेन मैट्रिक्स। बॉर्डर हैसेन मैट्रिक्स निकालेंगे इसका और देखेंगे कि नेगेटिव साइन के साथ स्टार्ट होके वेदर इट्स कमिंग अल्टरनेट और ऑल द साइन आर पॉजिटिव। तो इसका पहले हम बॉर्डर मैट्रिक्स निकालते हैं, है ना। तो ये 2 + 3 5/5 का बनेगा। क्यों भाई? कितने ऑर्डर का बनेगा? n + m ऑर्डर का बनता था आपका। So I will write the bordered Hessian matrix HB। बताओ भाई, कोई किसी को याद है? ये आपका बनेगा 5 × 5 का, m + n ऑर्डर का होता है ये, m + n ऑर्डर। 2 + 3 = 5। तो पहली मैट्रिक्स होती थी आपकी जीरो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? m × m की ना। तो 0 M cross N। 0 0 0। फिर ये होता था आपका del H ओवर, ये क्या होता था याद है? चलो del xj होता सर। del H ओवर del x1, मतलब del H1 क्योंकि 2 हैं, del H1 ओवर del x2 एंड del H1 ओवर del x3। सेकंड होगा del H2 ओवर del x1, del H2 ओवर del x2 एंड del H2 ओवर del x3, है ना। H आपके कांस्टेंट्स हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? द ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा। तो 3 इधर आ जाएंगे, del H1 ओवर del x1, del H1 ओवर del x2, इसे नीचे तक ले आते हैं, del H1 ओवर del x3 ट्रांसपोज कर रहा तो ये जो रो है कॉलम बन जाएंगी, del H2 ओवर del x1, del H2 ओवर del x2 एंड del H2 ओवर del x3। और ये जो बची आपकी लास्ट 3/3 है ना, n/n की, ये क्या होता था? इट इज योर fx minus lambda hx का वो करते सर। सेकंड ऑर्डर का होता था ये सेकंड Yes, ऑर्डर sir. के बनते थे। del 2f ओवर del x1 स्क्वायर 3/3 की मैट्रिक्स होगी ये, del 2f ओवर del x1 del x2, del 2f ओवर del x1 del x3 ना, ये वाली जो थी थर्ड। सिमिलरली सेकंड विल बी व्हाट? del 2f ओवर del x2 del x1, del 2f ओवर del x2 स्क्वायर, del 2f ओवर del x2 del x3। लास्ट वन बताओ क्या होगा? थर्ड है तो del x3 del x1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, del x3 del x2 del x2 एंड लास्ट वन del x3 स्क्वायर, है ना। ये आपकी here it has border matrix। तो ये हमारी इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती थी।
आप रिकॉल कर सकते हैं पीछे देख के, ये आपका बॉर्डर मैट्रिक्स कहलाती है ना। तो इट हैज बेसिकली 4 मैट्राइसेस 1 2 3 4। तो इसके एंट्रीज अब आप लिख सकते हैं, इसके एंट्रीज, हाउ मच द एंट्रीज, तो 0 0 0 0। अब डेल H1 ओवर डेल X1 देखो कितना हो गया, डेल H1 ओवर डेल X1 1, डेल H1 ओवर डेल X2 1, डेल H1 ओवर डेल X3 0। इसमें X3 का टर्म नहीं है कोई भी, तो यू हैव 1 1 0। Then del H2 over del X1 2, del H2 over del X2 3, del H2 over del X3 0. So second next row will be what? 2 3 0. Here the transpose. So 1 1 0 2 3 0. Now I will take del 2f over del X1 square. तो इसको दो बार करेंगे, ये आपका f है, तो del 2f over del X1 is minus 2x1 plus 4, है ना। And then again del 2f over del x1 square how much, -2 -1 -2 -2 है ना, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली 0 -2 0 0 0 एंड -2, तो ये आपकी 5x5, यू हैव गॉट दिस 5x5 मैट्रिक्स, है ना। नाउ आई विल फाइंड द अब प्रिंसिपल माइनर मुझे निकालना है, आई वांट टू, तो हियर व्हाट वाज द मेथड, सो यू हैव n3 m2, तो यू हैव टू फाइंड, कितने निकालने होते थे हमें, n माइनस m, दैट मींस 3 - 2, यानी कि एक ही माइनर निकालना है आपको। n माइनस m माइनस कैलकुलेट हुआ करते थे, तो 3 यानी कि ओनली 1 माइनर आई विल कैलकुलेट, और कितने ऑर्डर का होता था, स्टार्टिंग विद 2m + 1 2m माइनर, + 1 कितना हो गया ये, यानी कि एक ही माइनर निकालना है 5 ऑर्डर का, यानी कि बस इसी का डिटरमिनेंट निकाल लो, वही आपको बता देगा। अगर उसका साइन नेगेटिव है तो ये आपका फंक्शन जो है कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा, है ना। तो आई विल कैलकुलेट ओनली 1, इससे पता चलता है हाउ मेनी, और इससे पता चलता है स्टार्टिंग विद विच ऑर्डर, तो 5 ऑर्डर का एक ही है। तो माइनर का मतलब क्या होता है, जस्ट टेक द डिटरमिनेंट, तो प्रिंसिपल माइनर 5 ऑर्डर का क्या होगा, जस्ट टेक द डिटरमिनेंट ऑफ दिस HB, इसका अगर हम डिटरमिनेंट ले लें इट विल गिव यू द माइनर। इसका डिटरमिनेंट आप 5/5 का निकालेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 0 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो आप यहाँ पर, तो दो टर्म तो 0 है, 1 जो है 1 के टर्म में और दूसरे 1 के टर्म में करेंगे, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लोगे भाई अपने आप, नहीं ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया शायद, यस सर। अगर आप कहें तो मैं इसे निकाल भी दिखा सकता हूँ, वैसे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, चलो दिखा देता हूँ अगर आप कहेंगे तो। आई हैव कैलकुलेटेड इट, जो मेरे नोट शेयर है उसमें पड़ा हुआ है वैसे ये विद, देखो यहाँ पर अगर आप देखें 5th रो में आपके पास 4 0 आ रहे हैं, देखो, तो अगर मैं 5th रो के एक्सपेंड के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो मुझे सिर्फ -2 के टर्म में निकालना पड़ेगा, है ना। देखो तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, अगर डिटरमिनेंट निकालना है, just expand with respect to 5th row, because you have 0 0 0 0, only -2 will be coming, is it clear? यस सर। तो -2 ले लेंगे आप, लेकिन -2 के साथ you will hide the row and column, तो 4/4 का डिटरमिनेंट आएगा, 4/4 को फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन करा है अपने नोट्स में, उसमें आप चेक कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई नोट्स, जो मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं ऑन पेज 27, पेज 27 में मैंने एक रिमार्क लिखा हुआ है, वहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है कैसे आ रहा है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। तो ये -2 आ जाएगा निकल के, तो -2 का मतलब नेगेटिव आया, सो हेयर आपके पास क्या आ रहा है, कॉन्केव आ गया। इफ द प्रिंसिपल माइनर ऑफ बॉर्डर मैट्रिक्स इज नेगेटिव साइन है, सो इट मींस द फंक्शन इज कॉन्केव, दिस इंप्लाइज दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन f(x) इज कॉन्केव, ये कॉन्केव है, and all the hx are convex, so it means and all hx are already convex, so hence the KKT conditions
will be necessary and sufficient. Now I will find KKT conditions. Now come to the KT conditions. So the KKT conditions are वही फर्स्ट 5 कंडीशंस हैं आपकी 4 कंडीशन इनफैक्ट एफ जे माइनस या मैं इसे इधर इक्वल टू लिख दूं एक ही बात है क्योंकि मुझे सॉल्व करनी इक्वेशन इसे इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में आई इज इक्वल टू 1 टू कितने हैं कांस्टेंट यहाँ पर 2 हैं तो 1 टू 2 लैम्डा आई एच आई जे है ना तो आपके पास आई तो 1 2 ले लिया मैंने जे कितना है 1 2 3 सेकंड कंडीशन इज लैम्डा आई एच आई x is equal to 0. Third will be your all hix should be less than equal to 0 क्योंकि maximum problem है ये. Fourth will be your lambda I greater than equal to 0. So now the first condition will be what? है ना? So I am taking the first one. तो first में you have जब इसे हम solve करेंगे तो you will be having 3 equations देखो. First will be A will be what? When J is 1. So you will have F1 है ना Fj का मतलब क्या है del F over del Xj. तो पहले मैंने 1 के टर्म में लिया तो del F over del X1 will be how much? Del F over del X1 minus 2x1 plus 4 है ना तो first thing will be what? minus 2x1 plus 4 इन कंडीशंस को मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ जब इज इक्वल टू लैम्डा 1 और डेल एच है ना ये आएगा आपके पास कितना डेल एच वन ओवर डेल एक्स वन डेल एच वन ओवर डेल एक्स वन इज हाउ मच 1 so you have lambda 1 plus del h 2 del x1 is 2 तो plus 2 lambda 2 plus 2 lambda 2 ये बात समझ में आई भाई नहीं Yes, sir. देखो h1 आपका ये है ना h1x is what x1 plus x2 minus 2 and h2x is 2x1 plus 3x2 minus 12 so you will find del h1 over del x1 which is 1 del h1 over del x2 which is 1 del h2 over del x1 which is 2 and del h2 over del x2 which is 3 तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी j जब मैं 1 रखूंगा यहाँ पर तो del f1 over del x1 is equal to similarly b condition now I will put j is equal to 2 तो del f over del x2 तो del f over del x2 will be minus 2x2 plus 6 is equal to यहाँ 2 रखा है अब I तो अब lambda 1 del h over del x2 is how much 1 so you have lambda 1 plus 3 lambda 2 then c है ना c मतलब j f3 लिखा आपने f3 का मतलब क्या है del f over del x3 जब del x3 करेंगे अब तो del x3 means how much minus 2 तो minus 2 x3 is equal to अब del h1 over del x3 is how much 0 because in constant you don't have x3 and Yes, sir. del h2 over del x3 is also 0 तो जो थर्ड कंडीशन आपकी होगी it will be how much only 0 है ना that means x3 is 0 इससे x3 0 आ जाएगा तो ये जो थ्री इक्वेशंस आई हैं इट इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्योंकि J1 2 3 था तो आपने लिया del f1 over del x1 पहले एक बार सॉल्व किया फिर del f2 over del x2 एंड सो ऑन एंड del f3 तो ये थ्री इक्वेशंस आर कमिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन now I will take second lambda 1 h1x is equal to 0 so second में you also have again two equations first equation will be what lambda 1 x1 plus x2 minus 2 is equal to 0 and b
सेकेंड इक्वेशन विल बी लैम्डा 2 है ना, ये है ना, 2 कंडीशन है देखो, लैम्डा 1 h1 लैम्डा 2 h2, तो लैम्डा 2 h2, so h2 is what, 2x1 plus 3x2 minus 12 is equal to 0. Third condition is your constant should be less than equal to 0, constant condition है, तो ये आपकी कंडीशन वही है, x1 plus x2 minus 2 less than equal to 0 and 2x1 plus 3x2 minus 12 less than equal to, है ना, इसमें भी ये आपके पास दो कंडीशन है, a and b, and the last one, fourth one, lambda 1 should be non negative, lambda 2 should be not negative. अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है भाई, है ना, तो हाउ आई विल स्टार्ट नाउ, as I told you I will always start with this second condition. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म जीरो, जैसे हमने लास्ट टाइम में करा था प्रॉब्लम को लेके, तो आई विल सॉल्व इट नाउ, सो आई एम टेकिंग नाउ केस 1, इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, जो डिस्कार्ड होता जाएगा उस कंडीशन उसे डिस्कार्ड कर देंगे. केस 1 में व्हाट विल हैपन, तो देखो जब व्हेन यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई विल ऑलवेज सॉल्व बाय टेकिंग द केसेस ऑफ लैम्डा 1. तो फर्स्ट केस मैंने लिया, इक्वेशन 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2 0. केस 1 आई विल केस टेक इफ लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 0. ठीक है, लैम्डा से केस हम सॉल्व करेंगे सारे. भाई ये केस पॉसिबल है नहीं है, तो फर्स्ट केस आई विल ऑलवेज टेक व्हेन लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 0. ओके, फिर लैम्डा 1 0 का मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट 0, लैम्डा, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, तो इधर फर्स्ट 0 और सेकंड 0. फर्स्ट केस आई एम टेकिंग लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 0. तो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 है, देन तो अगर मैं इससे फर्स्ट इक्वेशन पे जाऊं, ये जो ABC लिखी थी, है ना, देन फर्स्ट ABC दे विल गिव यू, अगर आपने यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 रखा, देखो x1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2, x2 विल बी 6, इट विल गिव यू x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 0. लेकिन ये आपके पास, बट दिस वायलेट्स, अब ये सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन अगर आप थर्ड, ये देखो यहाँ, देखो यहाँ रखो जरा, अगर यहाँ अगर मैं रखूँ तो 2 + 3 5 - 2 कितना आ रहा है, पॉजिटिव, और ये होना चाहिए क्या, निगेटिव. डिस्कार्ड हो रही है इफ आई एम टेकिंग दिस, क्यों भाई, हेलो, यस सर. अरे यार नेट डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं स्लाइड कहाँ चली गई. वीडियो तो कंटिन्यू हो गया लेकिन वो चली गई. ये यार बहुत प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी में. सो आई वाज टेकिंग केस 1, अब वो आपकी क्वेश्चन भी चली गई पूरी. केस 1 आई वाज टेकिंग व्हेन लैम्डा 1 0 एंड लैम्डा 2 0. तो इस केस में यू गॉट फ्रॉम फर्स्ट, उसी की सिचुएशन में वही है, क्या करें, कंटिन्यू करें इसी में, बताओ. नेक्स्ट क्लास. प्रॉब्लम पूरी चली गई यार, वो अच्छी खासी प्रॉब्लम चल रही थी. चलो इस प्रॉब्लम को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, दोबारा लिखूंगा इसको, ठीक है, वरना फिर वो प्रॉब्लम शॉर्ट में लिख दूंगा, हेसियन मैट्रिक्स वगैरह आपने निकाल ही लिया. ओके, वैसे ये प्रॉब्लम की टाइम ज्यादा नहीं कंप्लीट हो नहीं पाएगी आज. हमें इसमें 4 केस डिस्कस करने पड़ेंगे बाय टेकिंग लैम्डास, है ना. आई विल टेक व्हेन ऑल लैम्डा 0, लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 नॉट 0, लैम्डा 2 नॉट 0, लैम्डा 1 0 एंड सो ऑन. उससे जो फाइनली एक केस आएगा जो सारी कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, वही लैम्डा से हमें ऑप्टिमल पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है भाई, तो इस प्रॉब्लम को आई विल कंटिन्यू टुमारो, मींस नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी, तो वहां डिस्कस करेंगे. ओके सर. चलिए.